हाय ब्यूटीफुल सोल्स, आत्मवंदन टू ऑल। कैसे हैं आप सब? होप डूइंग वेल। इवन इफ नॉट, सोमा इज हियर टू मेक यू वेल। Guys, welcome back to my channel. So, your own friend, your own life consultant, coach, healer, and occult science expert, Soma is here. So, guys, as I promised you all that on this channel, I'm gonna be giving you more clarity about all modalities of occult sciences. Being an expert of this science would highlight certain, areas of the different modalities of occult sciences. I'm gonna be discussing practical life situations, things, so that you can understand this science well. So today in this video, we're gonna be specifically talking about the transit of Jupiter, which has happened on 11th March, a day before yesterday only. And my team gonna be releasing the video after 14th, I believe. So by 15th or 16th, you're gonna be getting the video for sure, and you can get most of benefits after watching this video. Why? Because this video gonna help you to understand how you can take benefit of this Jupiter transit. So before I start telling you about the Jupiter transit, एक छोटी सी कंप्लेंट है, वेरी पर छोटी नहीं है, एक्चुअली काफी बड़ी कंप्लेंट है। एंड ये कंप्लेंट, डरिए मत, आपसे नहीं है। ये कंप्लेंट है बहुत बड़े ब्रांड के कुछ न्यूज़पेपर्स से, बिकॉज बीइंग एन अकल्ट साइंस एक्सपर्ट, हम लोग रिसर्च करते रहते हैं। वी कीप ऑन डूइंग all R&Ds, analysis, all analytics we do. So basically मैंने अभी recently कहीं पढ़ा, एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। बट बहुत अफसोस होता है, बहुत बुरा लगता है, बीइंग एन ऑकल्ट एक्सपर्ट। वहाँ पे एक लाइन लिखी थी दैट एस्ट्रोलॉजी इज अ बिलीफ बेस्ड सिस्टम, नॉट अ साइंस। सो लेट मी टेल यू गाइज, ये एक मिसलीडिंग थिंग है, and this is definitely misguiding the audience, our youth, our even elder people, and everyone, I would say. Why? Because see, I'll tell you one thing: astrology, or be it any modality of the occult sciences, yes, it's a belief-based system for sure. 101% it's correct. It's not a science. No, that is a myth. So they said on the article that astrology is a belief-based system, not a science. Oh, how can they say that? Guys, that's why I'm here, to give the right guidance about the not only astrology and all other modalities of the occult sciences. See, definitely it's a belief-based system for sure. One point is correct, but it's not a science. That is totally wrong. It is a science, and even I would say rather it's a way beyond science. Let's understand this thing, by an example, so that a layman person who don't know about occult astrology can understand and can relate and can get the clarity for sure. See, you know, राइट ब्रदर्स ने हमारा एरोप्लेन बनाया, राइट? वी ऑल नो दैट, हमने बुक्स में पढ़ा, राइट ब्रदर्स हैव इन्वेंटेड द प्लेन्स। अब पीछे जाओ, थोड़ा सा और पीछे, 1000 साल, 2000, 5000, कितने हजार साल पहले वी हर्ड अबाउट पुष्पक विमान। बीइंग एन इंडियन, आई कैन गारंटी यू all the evidences are there in our books, okay? पुष्पक विमान उस टाइम पे एग्जिस्ट करता था, एंड इसके एविडेंसेस भी अवेलेबल हैं गाइस। सो इमेजिन, उस टाइम पे एरोप्लेन बन चुका था और हम बहुत बाद में उसकी बात कर रहे थे, या बहुत बाद में वो देखा गया या उसको बनाने की बात की गई, राइट? अब समझिए इस बात को, जब वेदों पुराणों में वो चीज़ ऑलरेडी है, तो साइंस ने तो बहुत बाद में डिस्कवर की है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी अबाउट प्लैनेट्स। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने इतनी पहले ही सारे ग्रहों की खोज कर ली थी, जो साइंस ने बहुत बाद में जाके
यू नो जब रिसर्च किया, जब आगे इंस्ट्रूमेंट बने, टूल्स बने, उसके बाद फाइंड आउट किया दैट ओ दीज प्लैनेट्स आर देयर. सो गाइज, you know, it's totally a myth that it's not a science. It is a science, and rather it is way beyond science. तो बहुत बुरा लगता है ये आर्टिकल्स पढ़ के जो मिसलीडिंग होते हैं, मिसगाइड करते हैं. एंड बीइंग सच अ बिग ब्रांड, यू शुड नॉट misleading the audience or the public like this, right? ओके, ये तो हुई एक मिथ की बात जो हम ऑकल साइंस में डेफिनेटली हम इस चीज़ के लिए आगे बात करते रहेंगे गाइस. अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी बहुत ही क्लियरली. जो हमारे जुपिटर ट्रांजिट को लेके हम बात कर रहे हैं, जुपिटर ट्रांजिट को समझने से पहले आप ये समझिए ट्रांजिट होता क्या है, या गोचर जिसे हम कहते हैं. व्हाट इज दिस ट्रांजिट और गोचर? गाइस, जो ट्रांजिट है एक प्लैनेट का एक राशि में जाना. ट्रांजिट हम सब समझते हैं, राइट? वी अंडरस्टैंड ट्रांजिट, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, इट्स अ ट्रांजिट, राइट? सो इट्स अ चेंज बेसिकली, और वैदिक में हम इसे गोचर कह ही देते हैं. तो आप ये समझिए, ये ट्रांजिट जानने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा जुपिटर क्या करता है. व्हाट इज जुपिटर द प्लैनेट? सी, जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ विजडम, education, money, career, overall prosperity and luck. Okay, मैं फिर मंत्रों का सहारा लेके आपको समझाना चाहूंगी कुछ चीजें. गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः. तो अपने गुरु का ध्यान करके मैं आपको ये बात आगे पहुंचा रही हूँ, एंड आई एम श्योर आपको ये बात समझ में आएगी. गुरुदेव, जब हमारे देवता भी कहीं फंस जाते थे, when they used to get stuck in deciding something, so वो किसके पास जाते थे? They used to go to Gurudev, Brihaspati Dev, to take the guidance, to have that clarity, and that luck. जो हाँ वो stuck हो जाते थे तो गुरुदेव आके उनको फटाफट से बचा लेते थे, right? इस चीज को समझिए. when Guru, Jupiter, Brihaspati is transiting, that to a direct, वो एक बहुत ही प्लस पॉइंट है गाइस. ओके, अभी जुपिटर ट्रांजिट कहाँ कर रहा है, किन किन राशियों में इसका बेनिफिट होने वाला है? वैसे तो ये बेनिफिट सबको ही देगा, बिकॉज ओवरऑल बेनिफिट के लिए ये प्लैनेट है, बट देर आर 4 राशिज जिनमें बहुत एक्स्ट्रा एंड सुपर बेनिफिट देने वाला है गाइस. उसके बारे में हम आगे बात करेंगे डेफिनेटली. राशियों के बारे में बात करेंगे. वी गोना बी टॉकिंग क्या क्या बेनिफिट राशियों को मिलने वाले हैं, किन किन जोडियाक्स को मिलेंगे, और उसके अलावा उन जोडियाक्स के लिए क्या अलर्ट्स हैं, क्या टिप्स हैं, क्या गाइडेंस है, राइट? और क्या स्पेशल उनको चीज़ें मिलने वाली हैं. बिल्कुल बात करेंगे इस बारे में, बट उससे पहले आप ये समझिए व्हाट इज टाइमिंग. ट्रांजिट की हम बात कर रहे हैं ना, कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, तो ट्रांजिट में टाइम तो होगा बिल्कुल, एंड टाइमिंग इज रियली इम्पोर्टेंट गाइज. वी ऑल नो दैट. पता ही है, अगर आपने सही टाइम पे सही चीज नहीं करी या सही टाइम पे सही अपॉर्चुनिटी नहीं ली, तो आप अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे. करेक्ट? यू अग्री विद मी? ओके, so even if you want to get a shape of an iron, even if you want to get a shape of an iron, there is a very great saying: you strike the iron when it's actually hot to get the right shape or the desired shape. Why it is? आप सोचो इस बारे में. सी, क्योंकि अगर आपने सही टाइम पे, सही समय पे, सही जगह आपने अगर वार किया, तो ही आपको डिजायर्ड चीज मिलेगी. तो गुरुदेव आते हैं, बृहस्पति देव आते हैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आपके डोर पे नॉक नॉक करने. अगर आप उन्हें क्रैक करेंगे तो फिर तो बल्ले बल्ले है ना. अच्छा, अब ये तो हमने बात कर ली टाइमिंग की. वाई टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट? टाइमिंग सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में नहीं है. सी, वी डेफिनेटली हाईली इंसिस्ट ऑन द टाइमिंग्स. टाइमिंग इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन नॉट ओनली एस्ट्रोलॉजी, इन ऑल अकल्ट मॉडलिटीज. ओके, टाइमिंग इज द प्राइम.
सो नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग टाइमिंग, आप टाइमिंग का एक लास्ट पॉइंट समझिए. समटाइम्स टाइम इज गुड, समटाइम्स टाइम इज बैड, sometimes time is uncertain, sometimes time is very slow. यही होता है हम सबके साथ. कभी कभी हम बहुत अच्छा फील करते हैं, किसी किसी टाइम हम बहुत बेकार फील करते हैं, कभी कभी मूड एकदम हाई होता है, कभी कभी मूड एकदम लो होता है गाइस. ये हम सबके साथ होता है, राइट? तो टाइमिंग समझना इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम टाइमिंग की बात कर रहे हैं जुपिटर के ट्रांजिट में. क्यों? क्योंकि यही वो सही टाइम है जब जुपिटर बृहस्पति देव आपको आके समझा रहे हैं कि आपको क्या करना है, राइट? अब जान लेते हैं सबसे पहले किन ज़ोडिएक्स में जुपिटर ट्रांजिट का एक पॉजिटिव आउटकम दिखने वाला है. सबसे पहली राशि है एरीज, देन जेमिनाई. जेमिनाई ऑब्वियसली बिकॉज ये डायरेक्ट ट्रांजिट जेमिनाई में ही है, ओके, मिथुन राशि. एंड देन आपकी आ गई है एक्वेरियंस एंड देन लिब्रा, ओके. अब नाउ अंडरस्टैंड इन चारों राशियों में क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं, ओके. पर एक मैं आपको रिमाइंड करा दूं एक चीज, आप सोचोगे हम डायरेक्ट ट्रांजिट की बात कर रहे हैं, सो ये रेट्रोग्रेड वर्ड कहाँ से आया? और आप लोगों ने भी सुना होगा ग्रह वक्री हो गया, रेट्रोग्रेड हो गया. We all have witnessed the retrograde Mercury recently in February 26th, you know. We have witnessed this. We have witnessed the miscommunication happen amongst countries, USA, Iran, Dubai, you know, war kind of a situation. And the Iran war, you know, everybody know that. ओके, उसके अलावा भी हमने देखा ट्रैवल में एयरलाइंस गॉट स्टक. ये सब हमने देखा, वी हैव विटनेस दिस. अब आप इसी से समझिए उस टाइम पे मरकरी रेट्रोग्रेड था, राइट? February 26 से मार्च 20 तक मरकरी इज रेट्रोग्रेड. अब आप बोलोगे मैम रेट्रोग्रेड क्या होता है? सोमा, मेक अस अंडरस्टैंड रेट्रोग्रेड. जिनको नहीं पता मैं बता दूं, रेट्रोग्रेड इज सिंपल. फॉर एग्जाम्पल आप एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, है ना? ट्रेन में आप आगे की तरफ जा रहे हैं. when you see the plants or the trees who are standing, what do you feel? You feel like trees are going backwards and we are moving forward, okay? So basically tree पीछे जा रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं. planet वही है, वो अपनी जगह पे ही है, but वो एक movement उस तरीके का है that, you know, in that movement we feel that we are leaving trees behind, okay? So हो क्या रहा है ना, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है एंड वी आर गोइंग इस डायरेक्शन. प्लैनेट इस डायरेक्शन में, हम इस डायरेक्शन में है. तो अगर उस ट्री पे फल लगे होंगे, फ्रूट्स होंगे, तो आप उसे नहीं खा पाओगे फॉर श्योर, है ना? अब अगर आप इसको समझेंगे गहराई में, अगर आपको उस ट्री के फ्रूट्स खाने हैं, इफ यू रियली वांट टू टेस्ट द फ्रूट ऑफ दैट ट्री, सो वो ट्री आपकी साइड में होना चाहिए और आपकी ही डायरेक्शन में होना चाहिए, राइट? अब समझिए, हम कह रहे हैं डायरेक्ट ट्रांजिट प्लैनेट का सुपर्ब है, रेट्रोग्रेड दिक्कत देता है फॉर श्योर, है ना? जिनको नहीं पता तो मैं बता दूं, वक्रीय होना, रेट्रोग्रेड होना, पर घबराने की जरूरत नहीं है. हमें बस बैड टाइम में क्या करना है वो पता होना चाहिए. जब प्लैनेट रेट्रोग्रेड है तो क्या करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो देखना चाहिए, वो समझना चाहिए. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. और डायरेक्ट है तो फिर तो वी हैव आइसक्रीम ऑन द केक. सो उस फेज के तो मजे लेने चाहिए, बट अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए, राइट? अब देखिए, ये हम बात कर रहे हैं कि हमने मरकरी रेट्रोग्रेड की, है ना? लॉट्स ऑफ मिसकम्युनिकेशन हैपेंड, हाईली इमोशनल टाइम वी सॉ, सब चीजें स्टक हो गई, यू नो, किसी की बुद्धि काम नहीं करी, ट्रैवल स्टक, लॉजिस्टिक स्टक, बहुत कुछ हुआ. बैड 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 न्यूज, बैड फेस. बट आई वुड से रेट्रोग्रेड होने का भी प्लैनेट का एक पर्पस होता है. जानते हैं क्या? वो प्लैनेट आपको कुछ सिखाने और समझाने आता है. और मरकरी रेट्रोग्रेड ने बेसिकली, आई वुड रादर से इट वाज अ टाइम फॉर अ रीसेट और अ रीअसेसमेंट फॉर श्योर, ओके? वो एक रीसेट करने का टाइम होता है. अब क्योंकि गुरुदेव जेमिनाई में ही आ गए हैं डायरेक्ट, सो मरकरी, आपको पता है
बुद्धा हमारा प्लैनेट जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो कम्युनिकेशन का है, ट्रैवल का है, लॉजिस्टिक का है, नेटवर्किंग का है। तो वो सब हमारा बिगड़ा उस टाइम पे ना, मरकरी के रेट्रोग्रेड के टाइम पे। अब वो 20 मार्च के बाद से इम्प्रूव हो जाएगा, बिकॉज मरकरी का डायरेक्ट ट्रांजिट जेमिनाई में हो गया है, जो कि मिथुन राशि उनकी खुद की है, जेमिनाई की। अब गुरुदेव आ गए हैं, तो गुरुदेव तो सब संभाल ही लेंगे। अब नाउ अंडरस्टैंड, इतनी सारी बैड न्यूज के बाद लेट कम बैक टू द जुपिटर ट्रांसिट। और राशि की मैं आपसे बात कर रही थी, 4 राशियां हो गई, एरीज, लिब्रा, योर एक्वेरियंस एंड जेमिनी इटसेल्फ। सब राशियों पे, सब जोडियाक पे अच्छा रिजल्ट आएगा, बिकॉज गुरु सबका ध्यान रखते हैं। ओके और मैं एक और चीज यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी, गुरुदेव का ट्रांजिट है कैसे, जो जुपिटर है, बृहस्पति है, दैट एक्चुअली ट्रांजिट 4 महीने रेट्रोगेट रहेगा हमेशा। ओके इन एवरी ईयर 4 महीने रेट्रोगेट रहेगा और बाकी के टाइम वो डायरेक्ट आगे चलेगा। ओके तो बेसिकली 1 साल तक एक राशि में जुपिटर महाराज रहते हैं। 120 दिनों का ये साइकिल होता है। और यहाँ पे ये गुरु की सारी पोजिशनिंग मैंने आपको समझा दी है। अब आप समझिए, अब डायरेक्ट हो गए हैं तो फिर तो थोड़ा आराम हो गया है ना हम सबके लिए। बट जो 4 राशियों की मैं बात कर रही हूँ, सबसे पहली राशि है जेमिनाई, जिसमें मेनली कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग और मीडिया। गाइस, जिनका भी जेमिनाई मिथुन राशि ज़ोडिएक है, आप लोग प्लीज, अगर आपको अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं कम्युनिकेशन की, नेटवर्किंग की और मीडिया की, डोंट मिस दैट। दिस इज माय प्लस ऑन टिप फॉर यू, उसको मिस मत कीजिएगा। और होगा क्या ना कि जेमिनाई अपने आप में कम्युनिकेशन की राशि है, मतलब वाक में बहुत चतुर होते हैं जेमिनाई वाले, उनसे जीतना इतना आसान नहीं होता। बट अब क्या होगा ना कि अब वो पावर बढ़ जाएगी। अब आप दिखने लग जाओगे अपनी कम्युनिकेशन से, जो पहले आपकी बातें नहीं सुनी जा रही थी वो अब सुनी जाएंगी। यू विल बी द मोर इन्फ्लुएंशियल सॉर्ट ऑफ अ पर्सन। आप सबको इन्फ्लुएंस करोगे, योर विजिबिलिटी विल बी रियली हाई। बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए, नए डोर्स खुलेंगे आपके लिए फॉर श्योर। ओके लिब्रा की अगर मैं बात करूं, इन लिब्रा जोडियाक जो कि हमारी तुला राशि है, उसमें आपको बहुत सारे न्यू कोलैब मिलने वाले हैं, न्यू पार्टनरशिप मिलेंगी, यहाँ भी नए डोर्स खुलेंगे फॉर श्योर। और पार्टनरशिप अगर आपको मिल रही है, इफ यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ द पार्टनरशिप, प्लीज गो इट विद दैट। ओके ये मेरी साइड से आपको एक बहुत बड़ा टिप है और एक डेफिनेटली एडवाइस भी है। और अगर आप बात करेंगे एक्वेरियन की, एक्वेरियन वालों में क्या है ना, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, कुछ बड़ा क्रिएटिव करने का टाइम है एक्वेरियंस के लिए, राइट? तो जो भी चीज कुछ टाइम से एक्वेरियंस वो फीलिंग स्टार्ट स्लो, नाउ थिंग्स विल स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड फॉर द एक्वेरियंस, स्पेशली कुंभ राशि की मैं बात कर रही हूँ, राइट? अब रह गई है हमारी एरीज राशि। एरीज राशि में क्या है, जोश आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, थॉट्स गोना बी रियली वेरी बोल्ड। ओके आपको बहुत बोल्ड आइडियाज आएंगे, वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होएगा और बहुत अच्छे आपको ये अपॉर्चुनिटीज देने वाला है। तो ये 4 राशियों की हमने बात कर ली है। अब हम बात करेंगे कि ये जो जुपिटर का ट्रांजिट है वो एक्चुअली में हम सबको क्या सिखा रहा है। सम अप मैं करना चाहूंगी इस वीडियो का। डू नॉट हेजिटेट, डू नॉट ओवरथिंक, डोंट ओवरलोड योरसेल्फ, मतलब बहुत ज्यादा ओवरलोड नहीं कर लेना अपने आप को। ओके और जो भी अपॉर्चुनिटी आपके रास्ते में आ रही है उसको ग्रैब करना है। ओके उसको अपनाना है, क्योंकि दिस इज द राइट टाइम टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। ओके सम अप में मैं कहूँगी 2 C's का है ये एक फंडा, जिसमें आपको कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग और योर कनेक्शन पे फोकस करना है। क्या है ना कि कनेक्शन, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन ही मेन है यहाँ पे, बिकॉज वो जेमिनाई में ट्रांजिट हो रहा है।
तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है। बाकी गुरुदेव ओवरऑल लक एंड प्रॉस्पेरिटी लेके हम सबके लिए आने ही वाले हैं। बट इफ यू रियली वांट टू नो स्पेसिफिकली व्हाट्स देयर एज एन प्रेडिक्शन फॉर यू बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजिट ऑफ जुपिटर, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 4 राशि में तो हमने बात कर ली, इनके लिए तो अच्छा है ही, बट देर आर अदर राशिज ऑल्सो। अगर आपको जानना है कि आपकी राशि के लिए कैसा होने वाला है जुपिटर का ट्रांजिट, सो प्लीज डीएम मी एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज आप लोगों के लाइक एंड सब्सक्राइब always keep me motivated to make more videos out of my hectic schedule. And guys, मेरा नया एक ऑफर आने वाला है regarding my launching of the courses. So मैं लाल किताब के कोर्सेज लॉन्च करने जा रही हूँ, आकाशिक हीलिंग के कोर्सेज लॉन्च करने जा रही हूँ। I'm gonna be launching the tarot courses, numerology, BNN, astrology. So अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, so you can just ping me, you can connect with my team. They're gonna be definitely watching back to you, okay? और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर जरूर करें। Why? Because सबसे बढ़िया गाइडेंस आपको यही मिलने वाली है। That's for sure, guys. Thank you very much. आप लोगों के प्यार के लिए, blessings के लिए, so my is really very thankful, guys. Thank you very much. जय बृहस्पति देव।